Yeah, just give them a moment so that everybody can join in. If only this time limit was not there, we should have continued. Yeah, you can continue. No, go ahead. Yeah, I think there are a couple of people still left to join in. Yeah. Adding us, they are sending the request. Right. It's all right. We can wait for. I can wait for another 2-3 minutes. It's completely fine. Okay. In the meantime, as long as others are adding, if anybody, किसी के पास अगर कुछ questions है, जैसे I think Priyanka Kajol, they would want to ask you some questions. Even Shikshika might want to ask some questions. So in the meantime, you guys can go ahead and ask questions. Ma'am, I have a question. Yeah, this is Ma'am, I just want to ask that how to stay away from negativity, because nowadays we were surrounded by negative persons or negative vibes, right? So how to stay away from these negative things? Right. In this, I want to add one more point, that even though we can remove ourselves from a negative place, but we have the phone which constantly keeps giving us negative news. So that is an added trouble in this situation. Okay, go ahead, Anisha. Because nowadays we all are listening only bad news and negative news, na? So it gives mental pressure. It puts. So how to stay away from that? Yes. So I will take this up later on in my talk. Okay. Don't worry. There is a activity that we will do right after I'm done talking about this demonstration. Okay, and we a part of this, and I will also be giving a few techniques and tips on how to keep yourselves a little happier. Okay. Yeah. I feel, Anisha, 14 participants have joined in. Some might having some trouble. So you guys, you can go ahead with your Sure. All right. Okay. So as I was saying that demonstration के समय मैं essentially क्या कर रही थी, मैं बस वहां सुन रही थी, जो वो मुझे बोल रहे थे मैं उसी को जनरली रिवर्ट कर रही थी कि हाँ मैं देख सकती हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ कि आपके साथ ऐसे चल रहा है, हाँ मैं ये भी देख रही थी कि कुछ दिनों पहले से मैंने ऐसा देखा है आप में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास आ सके, राइट? फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या करती, तो उस समय मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं क्या करती, मैंने उसके आगे ये नहीं बोला कि तुम भी ये ट्राई करो. ओके, कहीं भी जब भी मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने उन्हें कोई भी किसी भी किस्म की एडवाइस नहीं दी, है ना? अभी आप सोचिए, ओके, आप खुद को एक ऐसे पोजीशन में डालिए कि आप बहुत गुस्सा हो, कुछ हुआ है और आपको बहुत 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 गुस्सा आ रहा है, और आपके सामने आपका कोई दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, हाँ आप लोग हमेशा बहुत टाइम से दोस्त हो,
वो आपके पास आके बोलता है अरे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ये करो, आपको एडवाइस देता है, तो उस समय आप बेटर फील करोगे या आपको और गुस्सा आएगा? जनरली लोगों को थोड़ा और गुस्सा, ऑब्वियसली बेटर फील होगा। बेटर फील होगा अगर वो ओके सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अच्छा वो आपने ये बोला जूही, करेक्ट? या यस मैम। यस, ओके। सपोज आपको बहुत 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 गुस्सा आ रहा है, ओके, आपकी कोई तो बहुत ही कीमती चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज टूट गई है, किसी ने तोड़ दी है, वो पूरी खराब हो गई, अब वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकती, आपके पास वापस नहीं आएगी, और वो आपके पास बहुत सालों से थी और आपकी बहुत करीबी चीज थी, ओके, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपके पास आके बोलती हूँ अरे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, एक सामान ही तो है, हम लोग कुछ और ले लेंगे, तुम्हारे पास और दूसरे सामान हैं, गुस्सा मत करो इतना, काम डाउन, शांत हो जाओ। कैसा लगेगा? गुस्सा तो आएगा, बट अगर कोई अपने लोग हैं तो फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। अगर आपके सपोज दैट आपके भाई है या आपकी बहन है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सामान से ज्यादा कीमती वो आपका भाई और बहन है और फ्रेंड्स है। वो तो सामान फिर से आ जाएगा, बट भाई बहन और फ्रेंड तो नहीं ना आ पाएंगे। जी, नहीं आना चाहिए एक बात है। So Juhi, I would just point out that Juhi is somebody who has a very high emotional quotient. This Yes, proves I this point understand that that. she has a very high emotional quotient here. Yes, I understand that, which is what I was coming to, कि नहीं आना चाहिए वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से आपने इस समय बोला कि आप ऐसे सोचती हैं कि वो तो सिर्फ सामान है, वो हमें नहीं, वो तो सामान है, ये तो हमारे भाई बहन हैं, तो ठीक है ये ज्यादा कीमती हैं, तो आपने वैसी एक सोच बना के रखी है अपने लिए, ठीक है, आप उस किस्म का इमोशनल इम्यूनिटी है आपके पास, ये मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था कि जैसे फिजिकल इम्यूनिटी है वैसे इमोशनल इम्यूनिटी, तो आपकी इमोशनल इम्यूनिटी ऐसी है कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ सामान है, वो लेकिन मेरा भाई बहन जो भी है मेरे करीबी इंसान है, तो सामान तो ठीक है, तो ऐसे आपने अपनी सोच बनाई है, तो आप कभी भी उस लेवल में ही नहीं पहुंचेंगे कि आपका मेंटल हेल्थ उतना इनस्टेबल होगा। लेकिन हम इन लोगों की बात कर रहे हैं जो माइल्ड डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, जो इस तरह से नहीं सोच रहे, जिनका सोच ऐसे चल रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एकदम अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब कोई इंसान ऐसे सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस सोच के साथ अगर हम ये सोच भी डाल देते हैं कि अरे मुझे पता है क्या कर सकते हो ये लोग, वो इंसान के दिमाग में और भी आ जाएगा कि अरे मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे दोस्त तक ये सब कर सकते हैं और मैं नहीं कर पाता हूँ। उनकी सोच ऐसी बदल जाएगी, और जब वो सोच और वैसी हो जाती है कि अरे मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब लोग मेरे से बेटर कर पा रहे हैं, मेरा दोस्त जिससे मैंने कभी 1-2 साल पहले हेल्प किया था आज वो आके मुझे ऐसी एडवाइस दे रहा है, मतलब वो भी मेरे से बेटर कर पाता है हर चीज, तो मेरे पास क्या बचा है लाइफ में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, है ना? देखा वो कैसे हमारा थॉट प्रोसेस गोल घूम के कहाँ पहुंच गया, क्यों? क्योंकि वो एक एडवाइस कही ऐसे दिमाग में, ऐसे थॉट प्रोसेस में कि कुछ ठीक नहीं हो सकता मेरे से। ओके, यस मैम। यस, तो जब हम ऑलरेडी एक हेल्दी लेवल पे हैं, जब हम ऑलरेडी ऐसे थॉट प्रोसेस पे हैं कि हाँ ठीक है, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, हम निकल सकते हैं टाइप, तो फिर कोई बाहर से एडवाइस दे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद को भी एडवाइस ही दे रहे हैं। लेकिन जब हम अलग थॉट प्रोसेस में हैं तो तब बाहरी एडवाइस हमें और थोड़ा सा दबा देता है ना? बचपन में शायद जब हम लोग 10th 11th 12th में होंगे, हमारे पेरेंट्स के साथ, शायद कुछ लोगों के साथ नहीं होगा, शायद कुछ लोगों के साथ होगा, लेकिन काफी फाइट्स होते हैं ना कि नहीं मुझे यही करना है, आप नहीं जानते हो, आप नहीं देखे हो, है ना? वो क्यों? क्योंकि हम खुद में ही उतने ठीक नहीं थे उस समय, और बाहर से कोई और एडवाइस दे रहा है, भले वो हमारे मॉम डैड हैं, भले ही वो सही एडवाइस हो,
लेकिन उस समय हम उस पोजीशन में नहीं है कि हमें एडवाइस सुनना है, हम उस पोजीशन में है कि हमें सिर्फ बोलना है, ओके, और हमें कोई सुने, क्या। और ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं नहीं तुम ही बताओ मैं क्या करूं, नहीं प्लीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो उस समय क्या एडवाइस हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप एक साइकोलॉजिस्ट को बोल सकते हैं कि ऐसे जाओ, एक एक्सपर्ट के पास जाओ। ठीक है, जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तब एक लेवल तक हम सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, बोला जाता है ना, हम काढ़ा पीते हैं, हम अपनी खुद की दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन जब वो बहुत बुरा हो जाता है तब हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी जब वो ज्यादा हो रहा है तो बेस्ट एडवाइस क्या है कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आप एक एक्सपर्ट के पास जाओ ना, वो आपको बेस्ट हेल्प करेंगे, और वो मेरी एडवाइस रहेगी और कुछ नहीं, ओके। But Anisha, I would want to point out here that here in small cities like ours, we have this problem कि ये mental health से related, maybe you said go to a psychologist or a psychiatrist, but यहाँ पे वो एक stigma है कि कोई अगर mentally थोड़ा इन तरीके के डॉक्टर्स के पास जाता है तो लोग उसको मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं, उसको जज करते हैं या जज करते हैं, एंड दे यूज अ लॉट ऑफ दीज टर्म्स. So how can somebody convince the family members or people around them that this is the normal way to go? जैसे हमें पता है कि as you said कि कोई बीमारी है तो go to the doctor, but ये mental issues के कारण हम वो बात भूल जाते हैं somehow. So how can we convince our group of people that no, this is the right way? Right, yes. So इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकें। जैसे कि आपने देवांजन आज ये एक सेशन सेटअप किया इतने लोगों के लिए, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाँ हम सबको देखना चाहिए, और ये बात कि एकदम नॉर्मल है, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ नॉर्मल है हमारी मेंटल हेल्थ भी नॉर्मल है, हमारे बॉडी का ही पार्ट है, या तो इस तरीके के अवेयरनेस जब हम जगा सके लोगों में, जब हम बता सके लोगों को, जब उन्हें स्प्रेड कर सके ऐसा, तब जाके वो थोड़ा सा स्टिग्मा जाएगा। एंड सैडली मेंटल हेल्थ के अराउंड सब जगह ही ऐसा स्टिग्मा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, यस बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिन लोगों को सच में जेन्युइनली जाना चाहिए एक स्पेशलिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास, वो नहीं जा पाएंगे शायद, क्योंकि ये स्टिग्मा ऐसे है, क्योंकि फैमिली बोलेगी नहीं तुम एकदम ठीक हो, चुपचाप से बस बैठ जाओ सब ठीक हो जाएगा, या कभी कभी फैमिली ये भी बोलती है तुम लड़के हो तुम मर्द हो उसे दर्द नहीं होता है ना, बॉयज डोंट, राइट, दैट्स आल्सो देयर। बट यू नो इस समय हम, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, हम लोग अपने आप से स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को वो सपोर्ट दे सकते हैं कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, चलता है कि आप ठीक नहीं हो इस समय, यहां से स्टार्ट करो, है ना, एटलीस्ट इतना स्टार्ट करो। आजकल वैसे भी घर से बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लोग घर के ही अंदर रह सकते हैं, तो अगर जाके आप विजिट नहीं कर सकते हो तो ट्राई कि क्या ऑनलाइन पॉसिबल है, इन सम वे क्या ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज अगर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो फोन कॉल के थ्रू आप किसी से बात करो, राइट, एंड समवेयर इन योर ओन प्लेस अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई चारा ही नहीं है कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, तो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाइए, जस्ट एक फिजिकल हेल्थ डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर भी जानते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा जानकारी तो रखा ही है कि मेंटल हेल्थ कैसी है क्या है, आप उनसे जाके पूछिए कि मेरे ऐसे ऐसे हालात है मेरे फैमिली में, वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, कि मैं एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊं,
तो आप प्लीज मुझे एडवाइस करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है. It's not. But it is something when nothing is there. Okay? Yeah. Okay. So can we lighten the mood and maybe talk a bit about motivation now? Because most of my students here, they are either been stuck at home for like 4-5 months and they have no information कि उनका अगला exam कब होगा. Many of them are preparing for competitive exams and their exams have been postponed twice now. So how can they keep themselves motivated and not just focus on the moving objective, which has been quite a lot in these few months, because every time the exams are planned, for some reason or the other, they get postponed or cancelled. So this has been a problem for most of my students. So can we address this problem? Yes, of course. So I think before I go into the general answer of this, Okay. I would like us to do an activity. Okay, perfect. Okay. For this, I would like everyone's videos on. Guys, So- go ahead and do that. Yes, I would really request all of you to switch your videos on. Please आप अपने अपने videos on कर दें. Okay. तो जितने videos possible नहीं है on करना ठीक है, लेकिन ठीक है, thankfully बाकी सब लोगों को मैं देख सकती हूँ. Okay. Now, can we mute someone? I think. Yeah. Got it. Yeah. Okay. All right. Now हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें I want all of you to close your eyes. Okay. आप सब लोग आराम से बैठ जाइए एकदम रिलैक्स पोजीशन में. ठीक है. और अपने अपने आंखें बंद कर दीजिए. एंड मैं जो कुछ भी बोलूं आप सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए और उससे आप अपना सोच बढ़ाइए. ठीक है. So imagine exactly what I am saying to you. Just follow my voice. ठीक है. तो सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए. Breathe in. Breathe out. Okay. Okay. अभी सोचिए कि आपके बाजू में आपका वॉलेट है. Okay. आप धीमे से अपना वॉलेट उठाइए. Okay. अभी आपको वो वॉलेट में 1000 रुपए ही चाहिए है. किसी भी कीमत में 1000 ही होने चाहिए उसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं. Okay, there have to be 1000 rupees in your wallet. Now slowly open your wallet. अपना वॉलेट खोलिए, उसमें अपना हाथ डालिए, निकालिए और आपके हाथ में, आपके पूरे वॉलेट में 500 रुपए हैं. सिर्फ 500 रुपए हैं. ठीक है. अब आप वो 500 रुपए अपने वॉलेट में डालिए. वॉलेट बंद करके साइड में रख दीजिए. ओके. अभी फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अभी आपके बाजू में वॉलेट है, आप उसे उठाइए फिर से. अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे मेरे वॉलेट में 1000 रुपए चाहिए, लेकिन अगर 1000 रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं. अभी आप अपना वॉलेट खोलिए, उसमें आप देखिए, आप निकालिए तो 500 रुपए हैं. ठीक है. अब वो 500 रुपए वापस अंदर डालिए, वॉलेट बंद करके साइड में रख दीजिए. ओके. अभी आप अपना वॉलेट फिर से उठाइए. अब आप सोच रहे हैं कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए है अपने वॉलेट में. ओके. आप खोलते हैं अपना वॉलेट, से निकालते हैं और 1000 रुपीज हैं आपके वॉलेट में. आप वो 1000 रुपीज रख देते हैं अंदर, वॉलेट क्लोज करके
साइड में। नाउ जब भी आपको ठीक लगे आप धीरे से अपने आईज ओपन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने ये एक छोटी सी एक्टिविटी की। ओके, नाउ आई वांट टू रिफ्लेक्ट। नाउ मुझे आप सबसे सुनना है कि हर टाइम 3 चीजें हमने देखी है ना। अब आप मुझे बताओ कि पहले टाइम पे क्या हुआ, आपको कैसे फीलिंग आई वो पहले वाले सीन में जब मैंने आपको बताया। एनीवन? Anybody can answer this. You have to talk honestly. जैसा भी feeling आया, Yes, नहीं आया, just say it out loud. There is no judgment here. कोई भी judgment के लिए नहीं है. There is no correct or wrong answer here. You just have to express. Yes. हम लोग को फर्स्ट व्यू में हम लोग को 1000 रुपीज चाहिए था, बट जब हमने वॉलेट खोला तो उसमें ओनली 500 वाज देयर। सो उसमें थोड़ा सा लगा कि यार मेरे को चाहिए था 1000 एंड अभी 500 ही है। ओके, तो थोड़ा सा ऐसे खटका, थोड़ा लगा अंदर, है ना। हाँ, और किसी ने लिखा है कि थोड़ा गुस्सा आया। ओके, और किसी को एक्सप्रेस करना है कि उन्हें कैसे लगा वो पहले वाले सिचुएशन में। ठीक है, नेवर माइंड। तो फिर सेकंड सिचुएशन में जाते हैं। उसमें आपको सेकंड कैसे सिचुएशन में लगा कि चाहिए तो 1000 ही था, बट उसमें एक था कि नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, 1000 नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो 500 जब वॉलेट खोले और 500 निकला तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ। उतना इफेक्ट नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि उस चीज के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे। ओके, प्रिपेयर्ड थे। और बाकी सबको कैसे लगा सेकंड सिचुएशन में? क्या बाकी सबको भी थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा हाँ, कम? क्योंकि यस मैम, बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी पता था ना, इसीलिए इसमें उतना हैपनिंग नहीं लगा कि कुछ होगा या होना चाहिए। मतलब पहले से ही वो जब सोचा था कि कोई बात नहीं, अगर 1000 नहीं है तो उतना नहीं हुआ। ठीक है, अभी थर्ड सिचुएशन में कैसा लगा? थर्ड सिचुएशन में खुश हुई क्योंकि 1000 चाहिए था, 1000 था पर्स में। खुश हो गए। जी रानी, आप कुछ बोल रहे थे? सेम थिंग कि इट वाज हैप्पी। नो, बट थर्ड सिचुएशन ये था कि हमारे पास 500 थे, तो फिर 1000 कहाँ से आ गए? No, that say go ahead. Anush. ओके, तो आपने ऐसा एक एक्स्ट्रा थॉट लिया कि आपने एक ऐसा थॉट लिया कि पहले 500 थे तो 1000 कहाँ से आया, है ना। तो आपने वो थर्ड सिचुएशन खुद के लिए एक अलग तरीके से एक्सटेंड किया। ठीक, लेकिन मैंने क्या बोला कि आप अपना वॉलेट उठाओ, बोलो आप ऐसे, है ना। तो मैंने वो थॉट नहीं ऐड किया आपके लिए, आपने वो थॉट ऐड किया खुद से, है ना। लेकिन was it a positive or a negative? पॉजिटिव। ओके, ठीक है। सो नाउ जब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन में तो 1000 रुपीज थे। ओके, अभी हम तीनों सिचुएशंस को इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं। ओके, थर्ड अलग है, सेकंड और फर्स्ट अलग है। ओके, सो थर्ड सिचुएशन में 1000 निकले, सब ओके था, सब हैप्पी थे, जैसे चाहिए था वैसे ही हुआ, है ना। ऑफ कोर्स सब पॉजिटिव थे। फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन सेम था, 1000 चाहिए थे लेकिन 500 निकले। नो, फीलिंग सेम थे? नहीं। फीलिंग्स नहीं थे ना सेम? फीलिंग्स ma'am. क्यों सेम थे? क्योंकि सबका अलग अलग फीलिंग हो सकता है ना, हमारे हर सिचुएशन में अलग अलग फीलिंग ही होगा,
जरूरी नहीं है कि हम लोग अभी जो सोचे वो नेक्स्ट में भी वही चीज सोचेंगे। ओके सो आपने बोला हर किसी का अलग अलग फीलिंग होता है, तो अभी फर्स्ट फीलिंग में हर किसी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, सेकंड में हर किसी को कम इम्पैक्ट किया, हर कोई उतना गुस्सा नहीं था, उतना सैड नहीं था, है ना? तो दोनों सिचुएशन में जब मैं बोल रही थी तो अलग क्या था? दोनों वॉलेट्स में 500 ही आ रहे थे, है ना? तो यस difference था दोनों में। हम लोग से एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग था। हम लोग सोचे थे कि हम लोग 1000 मिलेगा शायद। राइट तो वो जो सोच थी, वो जो एक्सपेक्टेशन हम खुद के लिए रख रहे थे वो अलग था। फर्स्ट टाइम में हमने क्या सोचा कि इतना चाहिए, इतना ही चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ये नहीं हो। तब क्या हुआ? हम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं थे जब उसके अलावा कुछ हुआ। राइट सेकंड में क्या बोला कि हमें ऐसा चाहिए है, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें कैसे लगा? उतना बुरा नहीं लगा, है ना? हम फिर भी थोड़े ठीक थे, उतने बुरे हालत में नहीं थे, उतना बैडली इम्पैक्ट नहीं किया था हमें उसने। एंड थर्ड सिचुएशन में क्या? ऑफ कोर्स हमें 1000 चाहिए था, 1000 ही मिला, हम खुश हैं, जो चाहिए था वही है ना? तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? जब हमें जो चाहिए रहता है और हमें वो मिलता है, नेचुरली हम उससे हैप्पी रहते हैं, नेचुरली हम उससे खुश रहेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? जब हमें जो चाहिए है वो नहीं मिलता है, और उस समय हम उससे कैसे रह सकते हैं, उससे कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना? और हमने क्या किया? दो अलग अलग थॉट प्रोसेसेस, दो अलग अलग थॉट्स, दो अलग अलग सोच हमने टेस्ट किए। एक ऐसा सोच था कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए है और ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया, तो हम बहुत ही ज्यादा उदास हो गए, बहुत ही ज्यादा खराब फील करने लगे। लेकिन दूसरा थॉट क्या था कि हमें ऐसा चाहिए है, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और उस थॉट में क्या हुआ? हम उतने उदास नहीं हुए, हम फिर भी थोड़े से ठीक लेवल में थे, एंड हम उसमें कंटिन्यू करते तो शायद हम कुछ देर में ठीक भी हो जाते, है ना? सो जब देवांजन, जब आपने बोला कि सब लोग एग्जाम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, लेकिन फिर वो फिर से कैंसिल हो रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी लाइफ, हमारे सिचुएशंस हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है वो। ये पूरा सिनेरियो क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नो मैम। नो, बिल्कुल नहीं है हमारे कंट्रोल में। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? इस समय हमारे कंट्रोल में क्या था? हमारे थॉट्स थे। और देखा कैसे एक सिंपल से स्विच ने हमारे इमोशंस को कितना जल्दी चेंज कर दिया था, है ना? एक सिंपल सा स्विच। तो अगर मैं एग्जाम का सिचुएशन लेती कि आपका एग्जाम सपोज शेड्यूल्ड था अगले हफ्ते के लिए, और आप लोग ऐसे सोच रहे हो, हाँ हाँ अगले हफ्ते एग्जाम है, अगले हफ्ते ही होना चाहिए यार, फिर से चेंज नहीं होना चाहिए, कैसे चेंज हो सकता है यार, बस अभी, ऐसे सोच के जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, बहुत निराशा होगी जब वो एग्जाम फिर से शिफ्ट हो जाता है, करेक्ट? लेकिन अगर हम ऐसे सोच के जाएं कि हाँ चलो अगले हफ्ते एग्जाम सेट किया है, होपफुली ये अगले हफ्ते हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ क्या पता, देखते हैं क्या होता है, या सर्टेन नहीं है, अगले हफ्ते नहीं भी हुआ तो ठीक है, देख लेंगे कब हो रहा है। अगर हम ये थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे तो क्या ये हमें थोड़ा हेल्प करेगा? क्या ये हमारे इमोशंस, हमारे मूड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखेगा? यस मैम। यस यस I think so that should be the approach. राइट? सो
ऑफ कोर्स और बहुत सारी चीजें हैं, बट फर्स्ट स्टेप क्या है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे साथ है, हम उसे देखें। और हमारे थॉट्स हैं, है ना? Yeah. तो मैम यस I have asked some question. मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज करेंगे? अगर एग्जाम जैसे कल है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है कि मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी कल ही, और कैंसिल हो गया सपोज दैट, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया कि नहीं अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस? वैसे ही सेम लेवल में नेक्स्ट एग्जाम का भी हम वैसे ही लेवल, मेरा मेंटालिटी वैसे ही सेट होना चाहिए। हाउ कैन आई? ओके, तो इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली। आपने बोला कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि इस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है, कल जो एग्जाम होगा वो होना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से जाएगा। यस मैम। यस, अगर हम इस थॉट को चेंज करें कि आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है और कल का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं अगले एग्जाम में देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। यस मैम। क्या ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा? हाँ, अगर मेरा पॉजिटिव माइंड अगर सेट होगा तो। यस, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये इजी है, ये बिल्कुल इजी नहीं है। हमने अपनी पूरी लाइफ अगर ऐसे बिताई है कि हमारा फर्स्ट थॉट ही ऐसा थॉट आ रहा है, ऐसा जा रहा है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, इट शुड हैपन दिस वे, माई कॉन्फिडेंस इज सो गुड, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर है कि कल होना ही चाहिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हमारा फर्स्ट थॉट ही वो रहता है। तो नेचुरली उसे चैनल करके एक दूसरे थॉट में लाना डिफिकल्ट है, एक प्रोसेस है, धीरे 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 होगा। आप सब लोग बीकॉम स्टूडेंट्स हो, करेक्ट? एमकॉम। MCom, BCom combined. Yeah. ओके, सो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो। या क्या सडनली अगर आपको इस साल, आप जो भी साल में हो, आपको सडनली बोल दिया कि नहीं आपको ये अकाउंटिंग करनी है, और आपने कभी लाइफ में अकाउंटिंग का नाम भी नहीं सुना है, क्या आप कल उठ के वो कर सकते हैं? नो मैम। नो। वो स्टार्ट से, वो जो 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से जो हम पढ़ रहे हैं, धीरे 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 जाके आपने ये बीकॉम और एमकॉम लेवल तक आप पहुंच पाए, और अभी इसमें और काम करना है। सिमिलरली हम जो इस समय मैंने जो थॉट का शिफ्ट बोला है, जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। आज हमने स्टार्ट किया है, हमने फर्स्ट स्टेप लिया है, हमने जाना है कि ये क्या है ना? अब धीरे 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 हमें काम करना है इस पे, धीरे 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 धीरे, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ साल शायद में, हमें ऐसे काम करना है कि हाँ अब जाके हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इजीली वैसे ही जा रहा है। ओके, और इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम खुद को पूछ सकते हैं जिससे हेल्प हो ये। ओके, सो जब आपके पास कोई थॉट आता है, मैं यही वाला थॉट ले लेती हूँ, कॉन्फिडेंस वाला, ठीक है? अभी के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है कि कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, तो कल एग्जाम जाना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ओके, सो लेट्स कीप द थॉट, टुमारो द एग्जाम शुड कम, कल एग्जाम आना ही है। अब हम 3 क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1, क्या कोई एविडेंस है कि कल एग्जाम डेफिनेटली होगा? या क्या कोई एविडेंस है कि हमारा जो थॉट है ये डेफिनेटली होगा? नो मैम। हाँ, शायद ना। ओके, सेकंड, क्या ये एक लॉजिकल थॉट है? अगर हम लॉजिकली सोचें तो क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कल शायद एग्जाम नहीं हो? है? यस। Yeah. तो फिर इज दिस थॉट लॉजिकल कि एग्जाम होना ही है? पॉसिबली नॉट। नहीं. नो। ओके, सो दैट इज इंडिकेशन कि हाँ मुझे ये चेंज करना है। थर्ड, क्या ये थॉट मेरे लिए हर्टफुल है? यस। सो आपका जो थॉट है इस समय कि कल एग्जाम होना ही चाहिए,
अगले हफ्ते एग्जाम आना ही चाहिए, क्या ये थॉट आपके लिए हेल्पफुल है? No. नॉट No, हेल्पफुल। नो, यू जस्ट सॉ कि हम जब ऐसे थॉट होल्ड कर रहे हैं तो आगे जाके तो डेफिनेटली हर्ट करेगा, लेकिन आज भी हर्ट करेगा अगर मुझे सडनली न्यूज पता चल गई कि नहीं हो रहा है ना? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं अगर हमारा जो थॉट है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आया कि इज दिस हेल्पफुल, नो, इज दिस लॉजिकल, नो, इज देयर एविडेंस, नो, इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन का नो आंसर आया तो मतलब आपको अपनी थॉट बदलनी है। और उस समय आप सोच सकते हैं कि हाँ, अभी मैं ये कैसे बदलूं, शायद पॉसिबल है कि अगले हफ्ते नहीं होगा, ठीक है, Okay. तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। या Okay, that's a very step orderly manner of understanding कि where to start that change. वो thought process मुझे change करना है, वो recognize करने का एक काफी मतलब एक easy way है, I would say. Okay, so I have one last question. I want you to address this one. One of my students has this question ki sometimes when they go to other friends or people they want to talk to, they feel that they are disturbing them या उनको परेशानी हो रही है. So what is that thought process that they need to change here या वो क्या करेंगे इस situation में? आई एम सॉरी, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में नहीं Okay, आया है। I'll just make it easier. She has this feeling कि okay, when if I go and discuss this my problems with somebody else, उनको परेशानी होगी या वो disturb feel करेंगे. So, what is the problem in this thought? Okay, फर्स्ट अभी 3 क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट, इज देयर एविडेंस? क्या आपके पास एविडेंस है कि उनको तकलीफ होगी? No, obviously. क्या आपको पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप कभी भी जान सकते हैं सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? No. एविडेंस ही नहीं है। Mm-hmm. So this is something that a person has to address themselves क्योंकि मुझे ऐसा शायद लग रहा है कि सामने वाले को होगा problem, but maybe if I discuss this, maybe I'll feel better and they may be able to help me better, या they may be able to guide me better, or maybe relax my mind in a way. Okay. So I Yes, will. so one, Yeah, go ahead, Anisha. हाँ, yes, so exactly as Devanjan just said कि हमें पहले ये सोचना है कि क्या कोई एविडेंस भी है कि हम जो सोच रहे हैं, और ये बहुत सारे सिनेरियोज में जा सकता है। जैसे जब हम सोचते हैं कि यार आज क्या मैंने ठीक कपड़े पहने हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, यार मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, क्या हुआ अगर गलत है तो सामने वाला क्या सोचेगा, हमें नहीं पता सामने वाला क्या सोचेगा। एंड even if you are discussing with your friend और वो फ्रेंड को डिस्टर्ब होता है, ओके, यू नीड टू नो कि ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, कोई भी चीज लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो फुल्ली एक ही साइडेड है। ओके, लॉजिकली स्पीकिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन गो yes or no, and you also need to keep that in mind, because if right now you need help, you need to know that. Okay. Yeah. Anisha, I will not stretch this further. Thank you very much for talking to my students here, and I hope they will feel a lot of their questions have been answered here, and I'm sure that they will now research a bit about this and try to understand more about mental health. Thank you very much, Anisha, and I hope that you will be able to join with us sometime in the future and maybe answer a few more questions. Gladly. And any of you can reach out to me, and